Good afternoon. Yesterday we studied chapter 2, representation of the earth. And yesterday we learned about the shape of the earth. Can anyone tell me what is the shape of the earth? Spherical. Spherical shape. Can anyone give me any proof regarding spherical shape? Ball. Spherical shape. How the earth is spherical? Is there any proof about spherical shape of our earth? Once when we see the shadow of the earth and moon, or during solar eclipse, we find that they are spherical shape. Then we see the movement of the sun in the sky from east to west, that is also semicircular. And we see the from the sea coast. As it moves further and further to the sea, it becomes smaller and smaller and it disappears. समुंदर में जब हम कोई जहाज को दूर जाते हुए देखते हैं बीच समुंदर में, तो वो छोटा होते 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 लगता है वो डूब गया। तो वो धरती के कर्वेचर के बाहर से और नजर नहीं आता है कर्वेचर के चलते। अगर फ्लैट अर्थ होता तो हमको शिप जो है वो छोटा होता नजर आता, लेकिन डूबता हुआ नजर नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है हमारे अर्थ का, आज के डेट में हमारे जितने सैटेलाइट है, वो जितनी भी तस्वीरें हमारी अर्थ की भेजी है, द पिक्चर्स सेंट बाय सैटेलाइट्स एंड द पिक्चर्स टेकन फ्रॉम एरोप्लेन सजेस्ट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? अगर हम एरोप्लेन से फोटो खींचेंगे अर्थ की, तो हमको अर्थ का सरफेस का पूरा शेप नजर आता है। और सैटेलाइट से जब हम अपने अर्थ की इमेजरी करते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं, तो हमें पता चल जाता है हमारा धरती गोल है, स्फेरिकल शेप में है। गुड, चलो ईशा कंफर्म कर दी है कि उसको समझ में आ गया है। और हम लोग जो है ग्लोब को भी डिफाइन किए थे, दैट ग्लोब इज अ 3-dimensional मॉडल and it gives us the shape, size, direction of ocean and continent correctly. Then we know that the globe also gives us the idea of the tilt of the earth. We can get the idea of rotation. We can spin the globe and see the part of earth moving one by one in front of the sun. And therefore, globes are very useful for understanding about the original shape, size, and location of ocean and continent on the earth surface. But the globe has some disadvantages also. कोई बता सकते हो वो globe के disadvantage क्या है? Yes, sir. It is not easy to carry. It does not show town, village, etc. All details cannot be marked on the globe. Very good. Globe is not easy to carry. Next is that we cannot show the detail of small towns, rivers, cities, and houses on the globe. So globe have the demerit. अच्छा, कौन कॉस्टली होगा, मैप या ग्लोब? अगर मार्केट में जाके मैप खरीदते हो तो वो कितने में मिल जाएगा, और मैप मार्केट में जाके ग्लोब खरीदते हो तो वो कितने में मिलेगा? Which one is cheaper? Which one is costly? Sir, globe is costly and Map is cheaper. Okay, very good. Globe is costly because it is a 3-dimensional model, and map are cheaper because today we have It is flat. advancement in technology with which we can get the map Xerox. Only 1 rupee or 2 rupee it may cost. Today we will learn about the definition of map. Yesterday also we learned about the definition. I am going to tell it very quickly. Map is a scientific drawing of the whole earth of a part of it.
तो मैप जितने भी हम लोग बनाते हैं उसमें हमेशा वर्ल्ड मैप जो है वो एक्यूरेट दिखता है। इंडिया का मैप छोटा हो चाहे बड़ा हो हमको पहचान में आ जाता है। So all the time once when we draw the map, we are drawing it on certain scientific basis. And because of scientific basis, we can recognize India, we can recognize any other continent or any other country of the world. Map is drawn according to a scale. Map is drawn according to the scale. तो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन में भी क्या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं इमेज को, पिक्चर को? यस सर। और मोबाइल में भी होता है कोई चीज छोटा या बड़ा? यस सर। तो ये कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिक स्केल यूज होता है जिससे कि इमेज बड़े हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। ठीक है। और मोबाइल में भी एक साइंटिफिक इस तरह का फंक्शन बना हुआ है जिससे हम इमेज को बड़ा कर सकते हैं, 2 टाइम्स बड़ा, 3 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं, है ना। और हमारे मैप को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द साइज, वी कैन इंक्रीज द डिटेल्स। अगर हम साइज बड़ा कर रहे हैं तो हम उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, ज्यादा हम जानकारी जो है दे सकते हैं। तो इसलिए मैप जो है साइंटिफिक ड्राइंग है, वो स्केल के अकॉर्डिंगली बनाया। तो उनको बताओ स्केल का मतलब क्या है? जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है वो? नो सर। या यहाँ पे स्केल का मीनिंग कुछ और है? ये स्केल is a ratio distance between 2 points on a map with a corresponding distance between the same points on ground. अरे वाह, वेरी गुड। Who are you telling? प्रिंसी? Yes sir. वेरी गुड। तो तुम तो स्केल का एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन बता दियो, लेकिन तुम्हें समझ में आया है तुम क्या बोले हो? क्या तुम्हें मीनिंग समझ में आया है तुम क्या बोले हो? अच्छा चलो देखो, मेरा मार्कर दिख रहा है ना? Yes sir. तो ये मार्कर को क्या हम छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी? Sir. एक्चुअल साइज का मार्कर को अगर हम बड़ा बनाते हैं तो भी स्केल चूज करेंगे, और अगर हम एक्चुअल साइज का मार्कर को इससे छोटा बना देते हैं तो उस समय हम जो है वहां पे स्केल चूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक्चुअल अर्थ में भी 2 जगह की दूरी को हम अपने कॉपी में दिखा सकते हैं या अपने मैप में दिखा सकते हैं। वो एक्चुअल डिस्टेंस जो अर्थ का है वो अपने कॉपी में हम जो है उसमें स्केल चूज करके उस डिस्टेंस को फिट करते हैं। मान लो अगर हम एक्चुअल जमीन का डिस्टेंस 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाते हैं, तो अभी मेरा क्वेश्चन सुन के आंसर देना है तुम लोगों को, ठीक है। हमने बताया कि जमीन का 1 किलोमीटर मेरे कॉपी का 1 सेंटीमीटर है। अब मेरा क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर दूरी हमको दिखाना है, तो हम कॉपी में कितनी बड़ी लाइन खींचेंगे? Who can answer? अगर हम 1 किलोमीटर जमीन का 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, तो जमीन का 5 किलोमीटर की दूरी को हम अपने कॉपी में कितने बड़े लाइन से दिखाएंगे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर दिखाता है तो 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दिखाता है। यहाँ पे तुम्हारे कॉपी का 5 सेंटीमीटर लाइन एक्चुअल अर्थ का कितना डिस्टेंस बताया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारा रियल अर्थ का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है और हम कॉपी में उसको 2 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और हम 2 सेंटीमीटर से उसको कॉपी में बना रहे हैं, तो चलो बताओ तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होगा कॉपी में? सर 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जो 1 सेंटीमीटर बोले हो उसका आंसर करेक्ट है।
क्योंकि 1 सेंटीमीटर से अगर हम 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर से हम 10 किलोमीटर दिखाए। ठीक है? यस सर। तो ये कितने लोगों को समझ में आ गया बात? गुड ईशा और गुड, जो हैंड रेज किए हो 3 पार्टिसिपेंट्स है, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर करेक्ट है और तुम्हें समझ में भी आ गया है। अब जो है हम लोग, हाँ गुड, अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैप लिखे हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। एडवांटेज क्या क्या है, मैप का एडवांटेज क्या है? मैप को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, मैप को हम लोग रोल कर सकते हैं और मैप को हम लोग बुक जैसा बाइंडिंग कर सकते हैं। कोई बता सकते हो व्हाट इज बुक ऑफ मैप कॉल्ड एज? एक ऐसी किताब एटलास। सबका आंसर एटलस। तो हम लोग जो है मैप का एडवांटेज क्या है, हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, हमको मैप में डिटेल ज्यादा मिलता है। हम गया का मैप भी बना सकते हैं और उसमें रोड दिखा सकते हैं, टेम्पल दिखा सकते हैं और उसमें जो है गया का रेलवे स्टेशन भी दिखा सकते हैं। और अगर मोबाइल में अगर गूगल अर्थ है तो उसमें तुम अपना डीएवी स्कूल और टेम्पल और रेलवे स्टेशन के अलावा तुम्हारा लोकेलिटी भी दिख जाएगा। यस सर। इज इट क्लियर? तो ये सब मैप बना तो हम सॉफ्टवेयर में भी अपलोड कर दिए, इस वजह से वो हमको दिखते रहता है। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, मैप्स आर चीपर, मैप सस्ते होते हैं। नेक्स्ट अब इसके डिसएडवांटेज की तरफ जाएंगे। हम पहले ही बताए थे ना कि मैप में जो है शेप, साइज और डायरेक्शन, ये 3 प्रॉपर्टी इकट्ठा केवल ग्लोब में ही हम देख सकते हैं, लेकिन मैप में वो पॉसिबल नहीं है। मैप में हम लोग जो है टू डायमेंशनल मेथड से जो है हम लोग 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। ठीक है? तो अच्छा बताओ, तो संतरा कितने लोग देखे हो? संतरा स्फेरिकल शेप का होता है ना? यस सर। ऑरेंज संतरा जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं? यस सर। तो उसका छिलका निकालते हो वो भी गोल गोल होता है कि नहीं? यस सर। अगर निकालोगे, हाँ उसका छिलका अगर निकालोगे तो वो भी थोड़ा गोल जैसा ही बनता है। यस सर। लेकिन अगर उसको हम रोटी जैसा अगर बेल देंगे, उसको रोटी बनाने की कोशिश करेंगे तवा में रख के, तो वो क्या होगा, जगह जगह से टूट जाएगा, है ना? यस सर। इसका मतलब वो डिस्टॉर्शन हो गया। कोई चीज में वो अगर कुछ मान लो कि गलत या कोई एरर आ गया है तो उसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं या शेप चेंज बोलते हैं। तो जो संतरा हम छीले थे, आराम से गोल गोल करके छीले थे, उसको अगर हम फ्लैट 2 डायमेंशनल बनाते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आता है या एरर आता है। कितने लोगों को अब ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टॉर्शन समझ में आया मीनिंग? Yes, sir. तो मैप में भी डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से शेप, साइज, डायरेक्शन कभी करेक्ट नहीं होते हैं। वो एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या है कि ये 2 डायमेंशनल है और इसमें और कोई खराबी नहीं है। ठीक है? तो नतीजा क्या है, मैप के बेनिफिट ज्यादा हो गए और डिसएडवांटेज कम हो गए। इसलिए दुनिया में आज लोग जो है मैप का यूज हमेशा करते हैं। क्या कार में भी हम लोग जो है कोई रूट या अननोन रूट में जाने के लिए मैप बन जाता है एलईडी स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तुमको मान लो दिल्ली जाना है तो मैप में तुम जो है कार की पोजीशन और आगे का रास्ता दोनों पता कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. ये सब आज के डेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग मैप को कनेक्ट कर दिए हैं और उसमें बहुत सारे हम लोगों को बेनिफिट मिलता जा रहा है। और पुराने जमाने के लोग के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो मैप देख के पता कर लेते थे कि कौन सा राजा का किंगडम कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सा रिवर कहाँ है।
ठीक है। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग जो है नदी पार करके, पहाड़ पार करके कोई नए राज्य में चले जाते थे, कोई नए जगह की खोज करते थे, वो मैप भी बनाते रहते थे साइमल्टेनियसली। अब हमको एक क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज कार्टोग्राफी? The science व्हाट इज कार्टोग्राफी? the aspect of map making are called cartography. Very good, Cartography. very good. The science of map making is called as cartography. Cartography. And who is the cartographer? A person who make a map. इसको अभी हम लोग गैप फिल करेंगे। पहला वर्ड, अब बताओ क्या क्या होगा? CARTO, उसके बाद GRAPSERS. लास्ट वर्ड CRTOGRAPHY. दिख रहा है? साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है। An expert of making map equal to क्या होगा? Cartography. कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफर? An expert of making map or a person who makes map is known as cartographer. कितने लोगों को ये समझ में आ गया? गुड। अच्छा, ये पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज कॉल्ड? Cricketer. अच्छा, ये पर्सन हु प्लेज फुटबॉल इज कॉल्ड? Footballer. Footballer. वेरी गुड। तो ऐसे ही पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड? A cartographer. A person who studies geography is called? Person who studies geography is called geographer. Person who studies geography is called geographer. ठीक है। चलो अब जो है थोड़ा सा मैप बनाने का हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। और अर्ली मैन के बारे में हम लोग को मालूम चल रहा था ना कि लोग जो है अपने खाना खुद बनाते थे और वो व्हील बना लिए और वो जो है घर बनाना सीख लिए और वो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज, पेंटिंग, ये सब वो सीख लिए थे नियोलिथिक एज में। कितने लोगों को याद है अर्ली मैन का लाइफ? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक स्टोन एजेस में वो अलग अलग नए नए चीज सीख लिए थे। अब वो जो है पत्थर और मेटल दोनों का इस्तेमाल सीख लिए थे। कौन सा मेटल सबसे पहले उन्होंने यूज किया? देखते हैं किसको याद रहता है। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज? कॉपर का स्पेलिंग बताओ। COPPER। तो कॉपर वाज द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन, सबसे पहला। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह में कुछ ना कुछ नया काम करने लगे। दुनिया के हर कोने में जो अर्ली मैन थे वो कुछ ना कुछ नया काम करते थे। और वो लोग मिट्टी जो है, मिट्टी में कुछ लकड़ी से खोद के डिजाइन बनाने लगे, ड्राइंग करने लगे, और वो हो गया अर्ली
अर्ली उनका मैप बनाने का तरीका। वो लोग जो है मिट्टी गीला करते थे, फिर उसमें तो कुछ कुछ जो है रास्ता बनाते थे, माउंटेन बनाते थे, ट्री बनाते थे, और इस तरह से वो किसी को आइडिया देते थे कि जो है कितने दूर में एक माउंटेन है और सनराइज किधर होता है और कौन से पेड़ का पास में जाना है। तो इस तरह से वो सिंपल माउंटेन एंड ट्रीज एंड सन इसको ड्राइंग कर करके मैप में यूज करने लगे। और वो कोई कोई जगह का केवल लैंड बाउंड्री बनाने लगते थे कि एक जगह है तो उसकी केवल बाउंड्री कैसे होती होगी वो ये लोग बनाते थे। तो 4 साइड्स बना दिए तो वो बाउंड्री सीख गए। और इस तरह से जो है वो एक जगह था, उसका नाम है मेसोपोटामिया। उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया। आज के डेट में वर्ल्ड मैप में हम उसको कौन सी कंट्री में ढूंढेंगे? अभी वाला वर्ल्ड मैप में कौन से कंट्री में ढूंढे मेसोपोटामिया? इराक। कौन सा कंट्री है? इराक। तो इराक एक कंट्री है और उनका पुराने समय में मेसोपोटामिया नाम का एक जगह था। वहां के जो लोग थे वो मैप बनाना सबसे पहले टेक्निक स्टार्ट किए, और उसके बाद वो धीरे धीरे मेसोपोटामिया से इजिप्ट के लोगों ने भी मैप बनाया, फिर एंशिएंट इंडियन, चाइनीज, ये लोग सब जो है अपने अपने नॉलेज के मुताबिक जो है मैप का यूज करने लगे और मैप बनाने लगे। तो कोई बता सकते हो कि पुराने जमाने के जो मैप थे उसमें वो स्केल से बड़ा छोटा करना और एक्यूरेट साइंटिफिक ड्राइंग होता था, या वो केवल रफ आइडिया था? पुराने जमाने के जो लोग थे क्या वो मैप को साइंटिफिकली बनाए थे या एक रफली अंदाज मिल जाए उसको ध्यान में रखकर बनाए थे? रफली अंदाज। रफ अंदाज मिल जाए उसको ध्यान में बनाते थे, और इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्केच। अब बताओ तुम लोग कौन कौन अपने ड्राइंग कॉपी में माउंटेन, रिवर और सन और ऐसे हाउस बनाए हो? बताओ जल्दी जल्दी। गुड। और कौन कौन बनाए हो कॉपी में ड्राइंग? कुछ कुछ किए हो माउंटेन का, घर का, ट्री का? तो तुम जब ड्राइंग किए हो तो वो ड्राइंग को हम लोग स्केच भी बोल सकते हैं। क्या तुम अपने अपने घर से स्कूल का स्केच बना सकते हो? यस सर। घर से निकल के राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर जो है कोई गोल चक्कर आएगा, कोई मेन रोड आएगा, फिर मेडिकल आएगा, एटी गेट आएगा, फिर डीएवी स्कूल आ जाएगा। क्या तुम अपनी स्केच बना सकते हो एक घर से लेके स्कूल तक का रास्ता? यस या नो? जो जो यस बोल रहे हो वो अपने कॉपी में आज एक ट्राई करोगे पेंसिल से। अगर पहला बार नहीं बना तो सेकंड टाइम हो सकता है उसी में इम्प्रूव करते करते वो अच्छा बन जाए। तो हम नेक्स्ट डे स्कूल में जब आएंगे तो हम तुम्हारा एक स्केच देखेंगे कि तुम अपने घर से स्कूल तक का ड्राइंग बना सकते हो कि नहीं। ठीक है? और एक आदमी था वो इजिप्ट का, क्या नाम था कोई बता सकते हो, जो पहला कार्टोग्राफर था? द फर्स्ट कार्टोग्राफर, the first cartographer who made the first map of the world. Who was father of map making? बताओ। उसका नाम टॉलेमी है। स्पेलिंग क्या होगा? स्पेलिंग PTOLEMY। DAV Public School, Rotary Campus, medical unit may close within 1 hour of when you arrive. Father of map making is? का आवाज आ रहा है। देख रहे हैं तुम लोग, इसको म्यूट करके रखो तो।
Father of map making is Ptolemy. P-E-O-L-E-M-Y. कितने लोग को ये स्पेलिंग याद हो जाएगा? कितने लोग को P-E-O-L-E टॉलेमी, ये प्रोनाउंसिएशन टॉलेमी, स्पेलिंग P-T-O-L-E-M-Y. He was an Egyptian person who was the first person to make the map of the world according to scale, and scientifically he had drawn and he represented the earth in a spherical shape. And therefore he was known as the father of map making. ठीक है, कितने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? Ptolemy was an Egyptian and he was known as father of map making and he belonged to Egypt. ठीक है, अब हमको बताओ एक क्वेश्चन, एस्किमो लोग मैप किस पर बनाते थे? मिट्टी पे, बर्फ पे, पत्थर पे या कुछ और पे? Repeat the question, sir. एस्किमो लोग मैप किस पे बनाते थे? हाँ, on which thing the Eskimo made their map? The Eskimos made their map on metal or clay or rock or soil or paper or something else. बताओ, एस्किमो लोग कौन सा सामान में मैप बनाते थे? कौन बताओगे? प्रिंसी बताओ तो क्या? एस्किमो लोग किसमें मैप बनाते थे? ये लोग एनिमल का स्किन को यूज करते थे और उसको अलग अलग कलर के सिलाई कर करके ये लोग मैप बनाते थे। क्या फुटबॉल में भी चमड़ा सिलाई होता है क्या? कितने लोग फुटबॉल देखे हो? गुड, अर्नब। और Yes, sir, होता है। फुटबॉल देखे हो? टुकड़े टुकड़े चमड़ा को सिल के जो है हम लोग फुटबॉल बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है चमड़े को सी के अलग अलग कलर के चमड़ों को सिलाई करके वो मैप बनाते थे और उनको आइडिया मिल जाता था कि एक जगह से दूसरा जगह कैसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आज का टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। The person who studies geography is called? Geography. Sir, geographer. A person who studies biology is called? Biology. Biologist. क्या बोलेंगे? Biologist. Biologist. ठीक है, Yes, sir. गुड। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप यानी कि पार्ट्स ऑफ मैप। क्या क्या हो सकता है पार्ट्स ऑफ मैप? Scale. ये क्या बन गया? कौन बताएगा? India map। इंडिया का इंडिया का मैप है। मैप बन गया। India map. Map of India. इंडिया का मैप बना ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कि ये हम क्या बना रहे हैं? Sir. दिखता ही नहीं है, क्या देखो।
ये ब्लू कलर से अभी हम क्या बनाए हैं? river, रिवर बनाया है ना? yes sir, Very good. yes sir, और अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज बनाएंगे। ये क्या बनाया है बताओ? north direction, नॉर्थ डायरेक्शन। और यहाँ पे अभी हम एक क्या बनाए इसको? कहाँ से आ गया फोटो? इसको हम क्या बनाए हैं? ये हो गया स्केल। 246 kilometer, ये क्या हो गया? स्केल। इतना दूरी 2 किलोमीटर बता रहा है, इतना दूरी 4 किलोमीटर बता रहा है। सबको दिख रहा है? yes sir, गुड। तो इसमें इतना डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये स्केल को यूज करके बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मैप में डायरेक्शन यूज किए हैं, स्केल यूज किए हैं, कुछ कलर से भी हम लोग रिवर दिखा रहे हैं तो कलर यूज करते हैं या सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को मैप के हम लोगों को पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या क्या है? डायरेक्शन। और क्या है बताओ? मैप के कंपोनेंट्स, मैप के पार्ट्स और क्या क्या है? compass, symbol, सर और कलर स्कीम, क्या है? कलर स्कीम, color सिंबल। और कुछ बताओ? neighborhood countries, हाँ, और कुछ है? कोई बता neighborhood सकते countries, हो? व्हाइट कलर किस लिए यूज होता है? देखते पहले कौन बताता व्हाइट कलर? तो माउंटेन को इंडिकेट करने में, व्हाइट कलर से हम स्नो दिखाएंगे कि वाटर दिखाएंगे? सर स्नो, अच्छा अच्छा। और ब्लैक कलर से हम माउंटेन दिखाएंगे या डेजर्ट दिखाएंगे? डेजर्ट, desert, ब्लैक कलर से माउंटेन की डेजर्ट? डेजर्ट, अच्छा, ब्राउन कलर से हम क्या दिखा सकते हैं? ब्लैक एंड ब्राउन। माउंटेन, अच्छा, Mountain. और mountain sir, फॉरेस्ट एंड प्लेन लैंड किससे दिखाएंगे? कौन से कलर से फॉरेस्ट या प्लेन लैंड दिखाएंगे? green, green, ग्रीन। अच्छा, ब्लू कलर से क्या दिखाएं? water, water अच्छा bodies, अच्छा अच्छा। और प्लेटो को, हिल एंड प्लेटो को कौन से कलर से दिखाएं? ग्रीन, हिल एंड प्लेटो? white, प्लेटो येलो एंड ऑरेंज। येलो एंड ऑरेंज से भी हम हिल एंड प्लेटो दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से हमको मैप के स्केल हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिंबल हो गए, कलर स्कीम हो गया, और भी है। और भी मैप का, जैसे मैप का नाम देना होता है, मैप का टाइटल भी होता है, और मैप में बाउंड्री भी बनाते हैं। ये देखो, हम एक बाउंड्री बनाए हैं ना मैप का, yes sir, yes sir, बाउंड्री बना दिए हैं, तो वो भी एक पार्ट है मैप का। अगर हम यहाँ इंडिया लिख देते हैं, दिस मैप शोज इंडिया, दिस मैप शोज इंडिया, तो यहाँ पे हम इसका टाइटल यूज किए हैं, यहाँ इसका हम डायरेक्शन दे दिए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग भाई इधर लेते हैं,
अब इसके अंदर में हम लोग कुछ कुछ सिंबल लेके हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग कलर देके हम स्टेट बना सकते हैं, अलग अलग कलर से हम रेनफॉल दिखा सकते हैं, टेम्परेचर दिखा सकते हैं, फॉरेस्ट दिखा सकते हैं। और हम अपने मैप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं लोगों से, ठीक है। तो आज जो है हम अभी क्लास डिस्कनेक्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट डे जब हम लोग फिर से